ખૂબ સ્વાગત. ઇન્ડિયા શેલ્ટર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એક ઉત્તર ભારતનું ખૂબ જ જાણીતું હોમ ફાઇનાન્સ કંપની બેઝિકલી વેપારી અને સ્મોલ મધ્યમ એન્ટરપ્રાઇઝના જે ઉદ્યમીઓ છે એને હોમ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ લોન લેનારને કંપની પ્રમોટ કરે છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ લોન લેનારને હોમ ફાઇનાન્સ આપે છે. અને આઈપીઓની બાબતમાં હું કહું તો આઈપીઓ 1200 કરોડનો છે, 800 કરોડ ફ્રેશ ઇસ્યુ છે, 400 કરોડનું ઓફર ક્લોઝિંગ છે. QIP 50%, રિટેલ 35%, નેચરનેટ 15%. આઈપીઓ 13 ડિસેમ્બર એટલે કે બુધવારે ચાલુ થશે અને 15 ડિસેમ્બર એટલે કે શુક્રવારે આઈપીઓ ક્લોઝ થશે. એન્કર બુક 12 તારીખ મંગળવારે ઓપન થઈને આઈપીઓ એન્કર એલોટમેન્ટ થશે. આઈપીઓના પ્રાઇસ બેન્ડ 469 લઈને 493 રૂપિયા છે. આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટમાંથી શ્રી રૂપેન્દ્રસિંહજી કંપનીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને CEO છે. આપણી સાથે છે શ્રી આશીષ ગુપ્તાજી કંપનીના CFO છે અને આપની સાથે શ્રી શરદ પરીખજી કંપનીના ચીફ રેવન્યુ ઓફિસર છે. હવે એક કંપનીનો આપણે વિડીયો જોઈશું, એ પછી શ્રી રૂપેન્દ્રજી પોતાનું કંપની બાબતમાં डिटेल प्रेजेंटेशन करते हैं. थैंक यू. हमने 2010 में राजस्थान से स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान. सो ऑटोमेटिकली द फर्स्ट few branches were opened in Rajasthan and that gave us the confidence to go to the states. Having said so, Rajasthan wanted to give a good performance from beginning, whether in asset quality, whether in growth. So the scope has been much better there because of vintage, the earlier experimentation that we have done. So Rajasthan has the maximum AUM as on date. So almost 29-30% of the book still in Rajasthan. So 10 years back it was 90%. Slowly it is coming down and today it is 29-30%. Whereas rest of the states, Maharashtra and MP, which came after that, they are also following it. They have some percentages from 17-18% in those states. And as we moving into south also, the good traction is coming in those markets also. So what is the maximum loan size? So we operate between 5 to 50 lakh rupees. But if you see, maximum of our customer are between 5 to 30. Beyond 30 lakh rupees of loan, we have hardly 2.5% of the portfolio. So operation focus area remains between 5 to 30 lakhs. What is the rate of interest? Rate of interest. So rate of interest is subject to multiple things. First important, as I mentioned, NHB said we have a good support in terms of low cost of fund. So there are few schemes of NHB where we get under the AHF schemes where they give at a very low rate with certain conditions that customer has to pass with certain margins. There the rate of interest are low in tune of 11.5%. Otherwise our rate of interest for home loan starts from 13%. Is there any concession for women loanees? So for every loan, we first try to educate women in a family that they'll get a subsidy in terms of registration when they're going for property registration, and we try to engage and persuade that all family members has to be there. So all 100% loan what we are disbursing today have women on any of the loan. So there's an advantage by the entire ecosystem in terms. But yes, if woman is there, we definitely take a certain privilege around that side. Companies targeting to tier 2 and tier 3 cities, and target audience is the middle class or the middle or lower middle class. Don't you think the risk of default is more in such cases? When we started this company, that was the mindset. So the design has been created in such a way that every customer is met on day one when he's coming for loan, and
the customer meeting should not only be with the sales guy, but also with the credit manager in the team. This credit manager, when he meets the customer at his own premises, their residence, they try to evaluate his income end to end. They have to triangulate his savings, earnings, expenses, and from there we are very clear that all family members should be aware that loan is given to the family there basically. So some part of education, some part of technology while using understanding their risk models around at least, understanding their past and behaviors. So what we have developed in this thing, automatically you might have seen the collection ratios has been very good. GNPA we have maintained very well. Even you can compare in the best in the class in that sense. So understanding from day one that is a self-employed, which is always considered to be a riskier part, how to evaluate is helping us out basically. Recently, the RBI has restricted for the risky loans, and any adverse effect like that? So intention of RBI is very clear that there is to be strong robust economy around at least such kind of situations where the riskier loans are lent in market should be taken care of. But companies like us which are purely into house loans, we don't do any unsecured, are always being given a positive note on that side. तो आज अगर हम बात करें तो ये अनसिक्योर्ड साइड पे वहाँ पे रिस्क वेटेजेस चेंज हुई हैं. होम लोन, हाउसिंग लोन और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग इज नॉट बीन कंसिडर्ड इनटू दैट फ्रे व्हिच इज कंसिडर्ड एज रिस्की. तो वी आर पार्ट ऑफ दैट पीस. हमें उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी परहैप्स नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट आना चाहिए इस तरीके से. If we look at the financial performance of FY21 to FY23, Members of media, representative of banks, मेरे colleagues, India Shelter, very good afternoon to all of you once again. It's a privilege, opportunity for me कि आज मैं इंडिया शेल्टर के बारे में अहमदाबाद के मीडिया दोनों के साथ अवगत हो रहा हूँ. अगले 5-7 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन को लेके चलूँगा. उससे पहले कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग करनी है. कंपनी 2010 में जब इंसेप्ट हुई थी तब मार्केट में अफोर्डेबल का नाम इतना नहीं था जैसा भी. इनफैक्ट अफोर्डेबल के नाम पे शायद ही एक दो कंपनी थी. मोस्टली टेम्पलेटेड प्रोडक्ट थे. सैलरी आस्पेक्ट को देना है, सैलरी जिसकी आ रही है उस कस्टमर को देना है. क्रीमी लेयर देश के पहले 12-15 शहरों में फंडिंग हो रही थी. उस टाइम पे इंडिया शेल्टर की नींव रखी गई ये सोच के साथ कि मार्केट बहुत बड़ी है, खासकर Tier 2 Tier 3 में, जहाँ इंडिया में मॉर्गेज टू जीडीपी रेशो सिर्फ 5-6% थी उस टाइम. तो दिखता था कि अगर दुनिया 50-60 पे जा सकती तो हम क्यों. तो ऐसे थॉट से एक कंपनी इंडिया शेल्टर की उस टाइम में, और शुरुआती दौर में बड़ा क्लियर था कि सैलरी से ज़्यादा अपने को सेल्फ एम्प्लॉयड फोकस करना है, क्योंकि जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का रोल बहुत बड़ा है उस इकोसिस्टम के अंदर, और जो टिकट साइज है उनके हिसाब से बराबर है. तो आज जब हम बात कर रहे हैं कंपनी का टिकट साइज हो, जो फोकस हो सेल्फ एम्प्लॉयड का, वो डे वन से ऐसे ही चलता आ रहा है. हाउसिंग लोन, होम लोन्स का बिजनेस ऐसा है जो थोड़ा शुरू में स्लो चलता है. उसका रीज़न भी है क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज रहते हैं, लीगल है, टेक्निकल है, मल्टीपल चीज़ें हैं, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है. HDFC लिमिटेड जो यहीं से निकली है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा इस तरीके से. तो आज हालांकि कंपनी को 13 साल हो गए और एक ये नया माइलस्टोन जो आगे चल के ले कोशिश कर रहे हैं इसको पाने की, IPO वाला, ये भी अभी आ रहा है. बट मेरे हिसाब से अभी जर्नी बहुत लंबी है और हमारी कोशिश रहेगी जैसे रिजल्ट अभी नहीं है इसको आगे भी लेके चलें. ऐसा थॉट प्रोसेस मैनेजमेंट है. डायरेक्टली टेकिंग टू द सम एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. पहले थोड़ा on the idea side, where we stand compared to the world. 2010-11 में 6% मॉर्गेज टू जीडीपी था, आज वो 12% है. बट स्टिल अगर हम देखें तो बहुत दूर है जो माइलस्टोन अचीव डेवलप्ड कंट्रीज में हो चुका है. आई थिंक ये स्कोप है, बताता है कि इस बिजनेस की कितना पोटेंशियल है. क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से अगले 3-4 साल काफ़ी इफेक्टिव है, पॉजिटिव है. अच्छी बात है कि कोविड के साथ बाद अंडर राइटिंग का टेस्ट भी हो गया, मॉडल भी कवर हो गए. तो अगर ये 15-16% की ग्रोथ रही तो इट इज एक्सपेक्टेड
अगले 4-4.5 साल में ये डबल द ग्रोथ हो जाएगी जहाँ पे मार्केट अभी अवेलेबल है। फैक्टर्स हैं, मार्केट ईयर 23 की डे बाई डे डेवलप हो रही है थैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देश का बढ़ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, कुछ अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो हाउसिंग के लिए बड़ी इफेक्टिव हैं। अगर हाउसिंग के लिए इफेक्टिव है तो ऑटोमेटिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। खासकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने दी हैं, एनएचपी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है इस इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म फंडिंग जो नॉर्मल बैंक 2-3-4 साल लेता है, हाउसिंग फाइनेंस की फंडिंग ज़्यादा लंबी होती है, कॉस्ट ऑफ फंड का बहुत बेनिफिट होता है कंपेरेटिवली। इसके साथ साथ रिस्क वेटेज बहुत अच्छी है, भी आरबीआई की रिस्क वेटेज की पहले पॉलिसी है, तो एक थोड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हाउसिंग फाइनेंस पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो इस इंडस्ट्री को हमेशा इस चीज़ का प्रोवेटिव मिला है, रिस्क वेटेज जनरली काफ़ी कंट्रोल में रही है और कुछ ऐसे टूल्स भी दिए गए हैं सो दैट हम इंसुलेटेड रहें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ जो जनरली कई बार लार्ज रिफॉर्ट्स उस तरह से आती हैं। इंडस्ट्री काफ़ी कंड्यूसिव है और यही रीज़न है कि अगर हाउसिंग इंडस्ट्री में जो भी कंपनी देखोगे उनके एमपीएस भी कम रहते हैं और उनकी ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है, लॉन्ग टर्म रहती है। तो थैंक्स टू द काइंड ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज़ बिल्डिंग अप आने वाले टाइम में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है कंट्री की और जो डेमोग्राफिक्स है वो ऑल्सो सपोर्ट कर रहे हैं, यंग पॉपुलेशन एस्पिरेशन है, ग्रो करना चाहती है, तो ये सब चीज़ें एक बढ़िया एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं जिसके कारण से हम जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास बहुत स्कोप है ग्रो करने का और हम भी उस जर्नी का पार्ट हैं। फोकस एरिया हमारा लार्जली 2 प्रोडक्ट्स पे है। एज अ एचएफसी होम लोन्स प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है, दूसरा मॉर्गेज लोन, और यही हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसके हम सस्टेन कर रहे हैं। जब हम होम लोन्स की बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60% के लगभग होम लोन है और बाकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मैक्सिमम जो कस्टमर है हमारे वो फर्स्ट टाइम मॉर्गेज बॉरोवर है, उन्होंने होम लोन या लैब पहले कभी नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइम मिलने जाने 70% 72% से कस्टमर उस कैटेगरी के हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोन देते हैं वो किसी इंडिविजुअल को ना देके फैमिलीज को लोन देते हैं, परिवार को लोन देते हैं। परिवार में जनरली हस्बैंड वाइफ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं लोन में, बट जब फैमिलीज को लोन मिलता है तो एक तो इमोशनल कनेक्ट ऑफ द फैमिली विद दैट लोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए फर्स्ट घर बन रहा है और इम्पॉर्टेंट वेंचर लाइफ में लेके जा रहे हैं और कंपनी की तरफ से रिस्क इज ऑलवेज लार्जली कवर्ड अगर फैमिलीज को ही लोन दें, तो ये हमेशा आस्पेक्ट रहता है। और इसी कारण से हमारे जितने भी लोन्स हैं उसमें से 97% के लगभग जिसमें वुमेन एप्लीकेंट्स रहते हैं। टीयर 2 टीयर 3 फोकस है, आगे भी फोकस रहने वाला है, यही फोकस है, यही हमने एक्सपर्टीज डेवलप करी है पिछले 12-13 साल में जो बिजनेस बना है। और क्योंकि इन मार्केट्स में सैलरी से ज़्यादा हमेशा दिखेगा कि उस इकोसिस्टम के मेजर ड्राइवर होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड एसएमईज होते हैं, तो जो भी अंडर राइटिंग मॉडल्स बने हैं, जो भी क्रेडिट के नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, वो चीज़ तैयार करके दिए गए कि उस एस्पेक्ट्स को अपन ध्यान में रख के आगे फंडिंग करते रहें, बिल्डिंग करते रहें और वो टाइम टू टाइम टेस्ट भी होते हैं। तो ये हमारा टारगेट एरिया है जहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में ये जो कस्टमर है जिसकी मंथली इनकम कई बार वो हस्बैंड वाइफ की इनकम भी क्लब हो जाती है 25,000 से लेके 55-60 हज़ार तक, तो ये मार्केट इसको ड्राइव कर रहे हैं। एवरेज टिकट साइज अभी जो लोन का है वो 10 लाख है और इन दोनों का है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी और होम लोन का 10 लाख के लगभग है। इनफैक्ट हमारे केस में होम लोन और लैब में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है।